સમય શાસ્ત્ર. આ બે શાસ્ત્ર એમાં આત્મજ્ઞાનનો સ્વાદ આવે છે. પ્રવર્તન સારની રચના એટલા માટે થઈ કે આખા જગતના પદાર્થોથી હું સહિત છું. પરિણામ સહિત માને છે, પણ જગતના પદાર્થો મારા પોતાપણે પાસે છે, ભીનપણે એને ભાગતા નથી. એટલે પ્રવર્તન સારની રચના થઈ. એમાં પદાર્થની સિદ્ધિ કરી. પદાર્થની સિદ્ધિ એટલે એક પદાર્થમાં બીજા પદાર્થની નાસ્તિ એવું અર્થિનાથી અને પોતાના પરિણામથી થયું. પ્રવર્તનસાર પોતામાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામ પોતાથી નહીં, પણ ઉત્પન્ન થતા જે પરિણામ એનાથી આત્મા સહિત છે. શુદ્ધ પરિણામ એટલે અશુદ્ધ પરિણામ, એ બધા પરિણામથી આત્મદ્રવ્ય સહિત છે અને પરદ્રવ્યથી આત્મા રહિત છે, ભિન્ન છે. એની શાસ્ત્રીય ભાષાએ સ્વચતુષ્માં પરચતુષ્ની નાસ્તિ એવું અસ્થિ નાસ્તિ અને પદાર્થને જુદા પાડે છે. ત્યારે બે પદાર્થને જુદા પાડે ત્યારે આ કુટુંબ કવિરા દેહાની મોટર ધન ધાન્ય એ કોઈ મારા નથી. કેમ કે મારામાં એની નાસ્તિ, નાસ્તિ એટલે ન અસ્થિ, મારામાં એનું ન હો. એનામાં ભલે હો છદ્રવ્ય, પણ મારામાં એનો અભાવ છે. મારા સચતુષ્ટમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવ એવો એક પદાર્થનું સ્વરૂપ છે. પદાર્થ એ પદાર્થમાં પર પદાર્થની નાસ્તિ છે એવું અસ્થિ નાસ્તિ એને બે દ્રવ્યની જે એકતા હતી, પરદ્રવ્યમાં મમતા હતી, એ મમતા જે ગળવા બને છે, વિખ્યાત ગળવા બને છે. દેહાદી મારા નથી, એમ કે દેહની મારામાં નાસ્તિ છે. હા, મારા પરિણામની મારામાં અસ્થિ. પદાર્થની સ્થિતિ અસ્થિ નાસ્તિ અને કાંતના બે પ્રકાર છે. એક પ્રમાણ સપ્તભંગી ને એક નઈ સપ્તભંગી. શાસ્ત્રીય ભાષાએ પ્રમાણ જ્ઞાનથી આત્મા ઓર દ્રવ્યથી જુદો ભાગે છે. ઓર દ્રવ્ય રજકણ કોઈ મારું નથી. મારા તો મારામાં પરિણામ થાય એ મારા છે, એને હું કરું ને બહુ પદાર્થની સ્થિતિ સંસારમાં થઈ. હવે જગત આખું પ્રમાણના વિષયમાં જૈન મતમાં આવ્યો. જો અસ્થિનાથી અને કાંતથી પર પદાર્થને જુદા પાડતો નથી, એ તો અજૈન છે. એ તો નામે જૈન નથી. દેહને પોતાનું માને, લક્ષ્મીને પોતાનું માને, મકાનને પોતાનું માને, ફેક્ટરીને પોતાનું માને. એ તો બે દ્રવ્યની એકતા કરે છે. એ તો અજૈન છે. એ તો નામે જૈન નથી. એ તો એને ખીચડો કર્યો, જળ ચેતનની એકતા. હવે એમાં એક ભેદજ્ઞાન જો કરે કે આ સ્વદ્રવ્યાદી કેવું ને પરદ્રવ્યાદી મારા, નહીં તો એને મમત્વ મળવા મળે છે. પર પદાર્થ ની કર્તા બુદ્ધિ અને ભોગતા બુદ્ધિનું ઝેર ઉતરવા માંડે છે. અને જો મારાથી પર પદાર્થ ભિન્ન છે તો પર પદાર્થને જાણતા મને આત્મજ્ઞાન થતું નથી. માટે પરદ્રવ્ય ની એકત્વ બુદ્ધિ છૂટતા કરતા ભોગતા બુદ્ધિ છૂટે છે, એની જ્ઞાતા બુદ્ધિ ગળવા માંડે છે, ટળી નથી રહેતી. એને બે દ્રવ્યની ચિંતા પાસે છે. આત્મા પ્રમાણ જ્ઞાનનો વિષય, એમાં તો દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય વિકાર વિકાર એટલું જ છે. એટલું વર્તુળ જુદું થઈ ગયું. વરથી આત્મા જુદો પડી ગયો. પર પદાર્થ મારે કાંઈ લેવા દેવા સમય નથી. આ દીકરો જન્મે તો એ
તું દે શકે તો તું દે જાય તો કાંઈ મારે લેવા દેવા નથી. લક્ષ્મી આવે તો ઠીક, લક્ષ્મી જાય તો ઠીક, કેમ કે જેની મારામાં નાતી હોય એના આવવા જવાથી આત્માને લાભ હાનિ કઈ થતો નથી. ઠીક છે. કહે છે કે અસ્થિ નાસ્તિ અને પ્રમાણ જ્ઞાનથી ફરથી આત્મા જુદો પાડે છે અને એ પ્રવર્તન સાચી પદાર્થની સ્થિતિ છે. પણ પદાર્થની સ્થિતિ થઈ પણ પ્રયોજનની સ્થિતિ એમાં થતી નથી. વિદ્વાનો પંડિતો એમાં રોકાય ત્યારે પ્રચાર થાય પ્રવર્તન સારા. હવે 19 વખત સમીક્ષા વાંચ્યું તો 19 વખત પ્રવર્તન સાર વાંચ્યું. ગુરુદેવ એનો તો વિચાર કઈ કરશું. ગુરુદેવ ક્યાં ભૂલ કાઢવાનું તો પણ અનાદિકાળથી પદાર્થનો પક્ષ છે. પરથી એને જુદો ખ્યાલમાં લીધો પણ અંદરમાં હવે એક બીજું અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંત સુધી નથી પહોંચતો. એ બીજા નંબરના અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંતમાં જયારે આવે ત્યારે એને આત્માનો વિરોધ થાય છે. પ્રવર્તન સાર પરદ્રવ્યથી આત્માને જુદો પાડે છે. એક પરમાણુમાં બીજા પરમાણુની નાસ્તિ, પરમાણુમાં પર્યાયની નાસ્તિ એ પ્રવર્તન સારનો વિષય નથી. શું કહ્યું? પરમાણુ છે એની પર્યાય તો થાય ને, રાજી ઊની પર્યાય થાય છે. એ પર્યાયથી આ પરમાણુ ભિન્ન છે એ પ્રવર્તન સારનો વિષય નથી. પ્રવર્તન સાર લિમિટેડ. એક પરમાણુમાં બીજા પરમાણુનો ભાવ, જીવમાં અજીવનો અભાવ, ચેતનમાં જળનો અભાવ, બે દ્રવ્યને જુદા પાડનાર પ્રવર્તનશાસ્ત્ર શાસ્ત્ર છે. હવે પ્રવર્તનશાસ્ત્ર શાસ્ત્ર તો લખ્યું પણ સાથે સમયશાસ્ત્ર શાસ્ત્રની રચના કરી. કેમ કે અનાદિથી પ્રમાણનો જીવને પક્ષ છે. પ્રમાણ જ્ઞાનમાં અન્ય મતનું ખંડન થયું અને સમયસારના અનેકાંતમાં પર્યાયથી ભેદ કરીને આત્માનો અનુભવ કર્યો ત્યારે વિખ્યાતો થાય. એટલે આ સમયસાર શાસ્ત્ર એની છઠ્ઠી ગાથામાં એની પૂર્વે આચાર્ય ભગવાને એમ કહ્યું, પરથી તો અમે આત્મા જુદો છે એમ તો પ્રથમથી કહેતા આવીએ છીએ. આખું પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. હવે એક તને બીજી મારે વાત કરવી છે. ફરમાવો પ્રભુ કે તારામાં જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે ને એનાથી આત્મા ભીન છે. એ અસ્થિનાસ્તિ અનેકાંત, એ પ્રમાણનું અસ્થિનાસ્તિ અનેકાંત અને નૈનું અસ્થિનાસ્તિ અનેકાંત. નૈ જ્ઞાન છે કે ત્રિકાળ સ્વભાવથી ક્ષણિક પર્યાયને જુદી પાડી. અસ્થિનાસ્તિ અનેકાંત એટલે નાયક તત્વમાં શુભાશુભ ભાવની નાસ્તિ છે, અસ્થિ નથી, નથી. એમ પ્રમત અને અપ્રમત 14 સ્થાનનો આત્મામાં ભાવ છે. એ અંદરમાં અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંતિ. હજી પર પદાર્થ મારા છે એને આ અંદરનું અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંતનો ખ્યાલ જ ના આવે. એવું કે હોય કોઈ પરિણામથી રહી ગયા એ વાત અંદરની અસ્થિનાસ્તિ અનેકાંત વાત છે. આ જૈન દર્શન અનેકાંતવાદી. એ અનેકાંતમાં એને ક્યાં છપી નાખ્યું જગતના જીવોએ? અનેકાંત એટલે અનંત ધર્મ આત્મગીત પદાર્થ એ અનેકાંત છે. પણ એ અનેકાંત તો અનુભવ પછી થાય છે. એને પહેલા એની પહેલાનો અનેકાંત પક્ષને લીધો. પ્રમાણ જ્ઞાન તો અનુભવ પછી થાય. પેલા પ્રમાણાભાર અનેકાંત ના બે અર્થ. એક અનુભવ થયા પછી આત્મામાં અનંત ગુણ, અનંત પર્યાય, અનંત ધર્મ ગણાઈ જાય તેને પણ પ્રમાણ જ્ઞાન કહેવાય. અનુભવ પછી. અને પેલા અસ્થિનાસ્તિ અનેકાંતથી એ પર્યાયનું લક્ષ છૂટીને દ્રવ્ય લક્ષ કરાવે છે. એકત્વ વિભક્ત આત્માને કહીશ ત્યારે શીખી પ્રશ્ન થયો, એકત્વ શું ને વિભક્ત શું? તેનાથી જુદો
સમયસાર કહે છે કે દેહથી જુદો અને પરથી જુદો એ હવે મારે કહેવું નથી. એ પહેલી ચોપડીનો પાઠ હતો પૂરો થયો. હવે તો બીજા ક્લાસમાં આવ્યો. બીજું ક્લાસ કહેવાય શું કહેવાય? હા, આ બીજા ધોરણમાં આવ્યો. હા, પહેલું ધોરણ પૂરું થઈ ગયું. હવે પહેલા ધોરણમાં તો પાસ થયો કે નપાસ થયો એ હમણાં હું તને માર્ક નહીં આપું. બીજા ધોરણમાં જો પાસ થાય તો પેલું ધોરણમાં પાસ કહેવાય. પાઠ બે છે, બીજું જાણ્યું તો નથી. કોઈ મૂંઝાવા જેવું નથી. હા, આટલા શાસ્ત્ર ક્યારે વાંચીએ, ત્યાં ક્યારે સંસ્કૃત ને આ બાવથી ને અમે કઈ જાણતા નથી. નહીં શું વિક્ષેપ શું પ્રમાણ શું એ બધું વિદ્વાન પાસે રહેવાનું. આપણે તો એ કહ્યું આ આત્મામાં પરિણામનો અભાવ છે એટલું લઈને ભાઈ. એ એક જ વિભક્ત આત્માનો પ્રશ્ન પૂછો કે શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ શું કે જે આપ કહેવા માંગો છો, અને જે વિભક્ત નામ પરિણામથી આત્મા જુદો છે એવું શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એ કૃપા કરીને મને સમજાવો. આ પેલા ધોરણમાંથી બીજા ધોરણમાં આવ્યો છે, પણ પેલા ધોરણમાંથી બીજા ધોરણમાં આવ્યો ને એ લાંચ આપીને આવ્યો છે. ખરેખર પાસ થયો નથી, ચડાવો થયો છે. લાગો પ્રજાનો છોકરો બીજા ધોરણમાં જયારે પાસ થાય ત્યારે પેલા ધોરણમાં પાસ નું સર્ટિફિકેટ મળે એવું છે. એ પ્રશ્ન કરે છે. હવે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે જેવો શુદ્ધાત્મા કોણ છે, એવો શુદ્ધાત્મા કોણ છે કે તમારે જે કહેવાનો ભાવ આવ્યો છે એવો શુદ્ધાત્મા કોણ છે? આદિ સુધી વાત કરી તો રમેશભાઈ તમારે કઈ કેવું છે પ્રમાણ સપ્તભંગી અને નય સપ્તભંગી વિશે? आपका अनम्यूट कीजिए रमेश भाई, आपका म्यूट है. यस, अब अनम्यूट हो गया. हाँ, ये सप्तभंगी के बारे में थोड़ा कुछ बोलना है. हाँ देखिए, सप्तभंगी के बारे में तो बाद में बोलेंगे हम. अभी अपने को जो चर्चा लेनी है वो प्रवचन सार का प्रमाण और समय सार का प्रमाण, ये दो बातें लालचंद भाई ने ली हैं. तो इसमें क्या है, प्रवचन सार पर द्रव्यों के अस्थि नास्ति अनेकांत सिद्ध करता है कि जीव में पुद्गल धर्मधर्म आकाश काल का अभाव है और पुद्गल धर्मधर्म आकाश काल का जीव में अभाव है. यहाँ पर उदाहरण दिया था लालचंद भाई ने कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अभाव, ये प्रवचन सार की शैली है. लेकिन पर्याय में द्रव्य का अभाव इस समय सार की शैली है. ये भी कहा था कि पहली क्लास में किसी ने पास की हो तभी वो दूसरी क्लास में आता है, लेकिन फिर उसको पलटा कि जब दूसरी क्लास पास कर लेता है तभी पहली क्लास पास की, ये सिद्ध होता है. ये बात पे आपने थोड़ा गौर किया था, आप लोगों के नहीं किया है? हाँ जी. देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो बात लालचंद भाई ने की है कि किसी ने पहली क्लास पास कर ली है तभी वो उसे दूसरी क्लास में एंट्री मिलती है, प्रवेश मिलता है. लेकिन ये भी कहा कि जब दूसरी क्लास पास कर चुका होता है तो उसने पहली क्लास पास की थी, ये उपचार आता है. तो ये दोनों कैसी, जब उसने पहली क्लास पहले पास कर ली थी तभी तो दूसरी में आया है. लेकिन यहाँ ये कहते हैं दूसरी क्लास पास कर लेगा तब कहा जाएगा पहली क्लास भी पास कर ली थी. इसका अंतर थोड़ा समझे. हमने इसको पीडीएफ को पढ़ा था आज पूरा घर पे. देखिए जरा कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिसने पर्याय से भिन्न द्रव्य को जाना है उसका ही परद्रव्य से भिन्न द्रव्य है, ये निर्णय पक्का कहलाएगा. यदि उसने
पर्याय से भिन्नता को पर्याय की मेरे में नास्ती है और अनंत गुणों की अभेदपने मेरी में अस्थि है, ऐसा पर्याय से भिन्न अपने को जिसने निर्णय नहीं किया है, उसके परद्रव्य की भिन्नता भी सच्ची नहीं है। परद्रव्य की भिन्नता तो ये जीव विकल्पात्मक में जब जब बैराग आता है तो कई बार कर चुका है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता नहीं बन पाई। प्रमाणिकता क्यों नहीं बनी है? क्योंकि जब तक पर्याय से भिन्न अपने ज्ञायक का भेदन नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, पर्याय से भिन्न की अस्थि नास्ति अनेकांत को स्वीकार करके उस रूप अपने को भेदन नहीं करेगा, तब तक परद्रव्य की भिन्नता का पाठ इसका कच्चा है। क्योंकि सच्चाई की मोहर तो मतलब सच्चाई की मोहर तो अनुभव के बाद ही लगती है। अनुभव होता है पर्याय की भिन्नता से। क्या होता है कि प्रमाण का अस्थि नास्ति अनेकांत है, ये प्रवचन सार की शैली है, और नए का अस्थि नास्ति अनेकांत है, ये समय सार की शैली है। तो प्रवचन सार वस्तु की बंधारण को सिद्ध करता, जो शब्द सोनगढ़ में अक्सर आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन वस्तु के बंधारण से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। आप अन्य मत को छोड़ करके जैन मत में तो आ जाओगे, लेकिन आत्मानुभव जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं वह नहीं आ पाएगा आप में। क्योंकि आप कहाँ जुड़े हो? आप जुड़े हो अभी पर्याय से, और जिसने पर्याय की भी मेरे में नास्ती है यह निर्णय नहीं किया है, तो किसी ना किसी अपेक्षा से उसका पर्याय पे रुकाव, झुकाव, प्रेम, लगन, कर्ता बुद्धि बनी रही। और जब तक पर्याय की कर्ता बुद्धि है, पर्याय का झुकाव है, पर्याय का लगन है, पर्याय की प्रीति है, तब तक वह जीव पज्जे मूड़ा पर समय से बाहर नहीं आ पाया है। तो अनुभव तो होता है दृष्टि के विषय में, माने कि द्रव्य की दृष्टि करने से, पर्याय की दृष्टि रखने से तो अनुभव होता नहीं है। इसलिए हमें दूसरी क्लास पास करना जरूरी है, और दूसरी क्लास के लिए पहली क्लास की भूमिका है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री धूली निसाल में धूल पे लिखते थे, इसके बाद उन्होंने सिलेट पट्टी पे लिखना शुरू किया। तो ये जो जिसे अभी परद्रव्य की भिन्नता नहीं बैठी है, अर्थात परद्रव्य मुझे सुख दुख का कारण है और मैं परद्रव्य का भला बुरा कर सकता हूँ, उसके लिए पर्याय से भिन्नता तो बैठना बहुत दूर की बात है। हाँ, कुछ पूछ रहे आप लोग? कुछ पूछ रहे थे कोई? नहीं नहीं, किसी ने नहीं पूछा। मैं चलिए पूछ रहा हूँ आगे। पंडित साहब। भाई हाँ बोलिए। पंडित, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं? सुने जी रहा है। तो ये पर्याय से भिन्नता की जो बात कही है कि जब तक पर्याय हाँ से भिन्न नहीं देखेगा तो हाँ तब तक का अनुभव नहीं होगा, अस्थि नहीं होगी। तो नहीं, यहाँ पर्याय, पर तो लालचंद भाई ये कहना चाहते हैं, पर्याय से भिन्नता का अनुभव नहीं करोगे तो दो द्रव्य की भिन्नता का भी जो आपने धारणा बनाई है वो सच्ची नहीं है। अच्छा, तो पर्याय में कौन सी पर्याय लेना फिर? सभी? सभी सभी निर्मल मलिन पर्याय जी मात्र। जी 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 क्योंकि ज्ञानचंद जी परद्रव्य जी को भिन्न कहा है यहाँ, सॉरी, जी परद्रव्य के बाद में पर्याय मात्र को भिन्न कहा है। तो जी जी पर्याय में कौन सी पर्याय लेंगे? एकमात्र जी यदि दृष्टि में कोई शामिल है तो वह है कारण शुद्ध पर्याय, क्योंकि वह जी पर्याय नहीं है उत्पादवय रूप, वह द्रव्य ही है और द्रव्य का वर्तमान है। लेकिन जितने भी जी सापेक्ष या निरपेक्ष पर्याय हैं जो जी उत्पादवय रूप है, वह सब द्रव्य से भिन्न है, वह मेरे से भिन्न है। अब जी ये जी इसका अनुभव कब होगा, ये देखना है जरा अपन को, जी कि पर्याय से भिन्नता बताने का उद्देश्य आचार्यों का पर्याय से लक्ष्य हटाना है। पर से लक्ष्य तो हमने प्रवचन सार में हटा लिया था, जी और कम से कम स्थूल जैन व्यक्ति कोई होगा
तो वो भी इतना मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ठीक। आज सुबह के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में जो प्रभात प्रकाश का प्रवचन चला, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के करता नहीं में 50 उदाहरण दिए और सिद्धि की इस बात की। अब होता क्या है कि ये वाला पाठ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसको पहली क्लास में रखा लालचंद भाई, और जी। पर्याय मात्र का करता नहीं है, और पर्याय से द्रव्य में की पर्याय की द्रव्य में नास्ती है, और द्रव्य में पर्याय की नास्ती है, ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत ये दूसरी क्लास में रखा है। और फिर फौरन पलटे अपने विषय को कि दूसरी क्लास पास किए बिना पहली क्लास का भी सर्टिफिकेट कच्चा है। कच्चा क्यों अच्छा। कहा है, क्यों कहा है, इसको ध्यान देना जरा। क्योंकि ये जीव प्रयोग लब्धि में अनंत बार आ चुका है, तो प्रयोग लब्धि में तो दो द्रव्य की भिन्नता को स्वीकार किए बिना ये जीव प्रयोग लब्धि में आ ही नहीं सकता है। लेकिन कर्ण लब्धि में क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसने पर्याय मात्र से भिन्न जो एक त्रिकालिक ज्ञायक तत्व था उसकी उसमें पर्याय मात्र की नास्ती, अर्थात पर्याय से कुछ नहीं, मैंने पर्याय को सुधारना, पर्याय को बिगाड़ना, पर्याय को हटाना, पर्याय को लाना, पर्याय को मोड़ना, पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाना, पर्याय से द्रव्य का आश्रय करना, पर्याय से वेदन करना, पर्याय में मोक्षमा प्रकट करना, इत्यादि जितनी भी बातें हैं जिसकी स्लेट पे से ये साफ हो चुकी हैं। क्योंकि मैं तो वो तत्व हूं जो पर्याय से शून्य, पर्याय से लेनी देना मेरा कुछ नहीं है, ना मैं विकारी हुआ हूं ना मुझे शुद्ध होना है। ऐसी पर्याय की अत्यंत उपेक्षा जिसे बरत रही है, और द्रव्य की इतनी अपेक्षा बरत रही है कि पर्याय में सोगानी जी लिखते हैं ना, पर्याय में निगोद हो या पर्याय में मोक्ष हो, मेरे को कोई असर होने वाला नहीं है, मैं वो ज्ञायक तत्व हूं। तो जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक पर इतनी ऊर्ध्वता से लग गई है कि जिसे अपनी दुनिया में पर्याय दिखाई ही नहीं देती, उसने दूसरी क्लास पास की है। अब जिसने बहुत दूसरी बढ़िया। क्लास करके अपने ज्ञायक में अहम स्थापित कर दिया है, अपने को पूर्ण ध्रुव एक रूप परमात्मा स्वीकार और वेदन करने लगा है, उसके लिए अब निश्चय से आरोप आएगा इसने पहली क्लास पास कर ली है, अर्थात दो द्रव्य की भिन्नता इसके ज्ञान में स्पष्ट आ गई है। गुरुदेव ठीक। दो द्रव्य की भिन्नता पर जो जोर देते हैं कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य करतो नहीं, वहां पे प्रवचन सार की शैली में तुम्हारे लिए प्रमाण में ला रहे, और भाई श्री का तो बोल है कि प्रमाण में से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। अब जो दो द्रव्य की भिन्नता करके प्रमाण में आकर के और अब इससे मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता है, तो प्रमाण में तो द्रव्य पर्याय दोनों है, अब उनमें से तुम्हारा कहाँ है, रुचि कहाँ है, कर्ता बुद्धि कहाँ है। यदि पर्याय में कर्ता बुद्धि है, पर्याय की रुचि है, पर्याय को पलटने और सुधारने की वृत्ति बरत रही है, तो आप प्रमाण से बाहर नहीं आए, प्रमाण में ही अटके हैं आप। हम तो वो तत्व है जो एक रूप निष्क्रिय शुद्ध परम पाणिनिक भाव तत्व है, जिसमें पर्याय मात्र होती ही नहीं है। तो पर्याय को इतना अत्यंत गौण किए बिना, द्रव्य की ऊर्ध्वता किए बिना कभी भी आपको मुक्ति मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अभी जो पंडित अरुण कुमार जी लालचंद भाई जी का जो बोल चला रहे थे, बहुत सुंदर बोल था, और उसमें जो बात आई थी कि पहले में पहले चिंतन होता है, फिर घोलन होता है या घुटन होता है, फिर निर्णय होता है, फिर निर्णय के बाद में आत्मा का अनुभव होता है। अब इसमें अपने चेतन भाई जी राजकोट वाले से सोनगढ़ आए थे, तब हमारी उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने एक वो दिया था श्लोक बहुत अच्छा कि आत्मा का अनुभव सहज साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है। फिर भी जो पुरुषार्थ कहा जाता है तो वो पुरुषार्थ यह है
कि पहले जीव आगम के आलोक में इस बात का निर्णय करे कि मैं कौन हूं, मेरी दुनिया क्या है। तो पर पर्याय मात्र से रहित ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, ऐसा सविकल्प निर्णय करे। और अब इस सविकल्प निर्णय में फिर दृढ़ता लाए, फिर इसी सविकल्प निर्णय में दृढ़तमता लाए, फिर इसकी निरंतरता करें। बस इतना बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना जीव के हाथ में है। और जब इसकी निरंतरता बराबर। बढ़ती है तो सहज एक ऐसा समय आता है कर्ण लब्धि का कि आत्मानुभव उस जीव को हो जाता है। मैंने बुद्धिपूर्वक तो हमारा निर्णय की दृढ़ता, निर्णय की दृढ़तमता और निर्णय की निरंतरता। अभी जो चर्चा कही थी कि निर्विकल्प निर्णय, तो वो क्या है, पूर्व के निर्णय पर आरोप डाल के जैसा उसने निर्णय किया था वैसी ही वस्तु मिली है, तो निर्णय की प्रधानता से उसे निर्विकल्प निर्णय कहते हैं। लेकिन निर्णय की सीमा तो आत्मानुभव के पहले तक ही है, उसके बाद तो निर्विकल्प विधन है। उसके बाद में कोई निर्णय नहीं होता है। निर्णय सविकल्पी भी होता है और निर्णय निर्विकल्पी भी होता है। तो सविकल्प निर्णय कब तक काम करता है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। वो सविकल्प निर्णय, लालचंद भाई ने एक बार कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि सविकल्प स्वसंवेदन और निर्विकल्प स्वसंवेदन। तो अनुभव के पहले सविकल्प स्वसंवेदन होता है, उस समय चौथा गुण स्थान नहीं आता है, रहता है पहला गुण स्थान। लेकिन माने सविकल्प स्वसंवेदन में विकल्प में जैसा आत्मा का स्वरूप निर्णित हुआ था, वैसा ही निर्विकल्प दशा में वेदन में आया है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल अतीन्द्रिय आनंद के मोहर छाप का अंतर है। इसमें भाई श्री ये बताना चाहते थे, मैंने इसको जरा हम कोट करना चाहते आपके लिए, कि हम अपने अपने हृदय को झांक के देखें कि हमें जो अपने बारे में, दृष्टि के विषय के बारे में, ध्रुव तत्व के बारे में निर्णय हुआ है, वह क्या अनुभव के काल में मुझे वैसी ही वस्तु मिलेगी, इससे अन्यथा नहीं मिलेगी, वही वेदन में आएगी, इतनी दृढ़ता हो चुकी है, तो आपके निर्णय विकल्प स्वसंवेदन कहने में आएगा। और जो जीव अभी निर्णय की भूमिका में दृष्टि के विषय के यथार्थ स्वरूप में ही थोड़ी जिसके हृदय में कचास बरतती है, और कहीं ना कहीं कि भाई अनुभव तो पर्याय में होगा, निर्विकल्पता तो पर्याय में आएगी, मोक्ष मार्ग तो पर्याय में होता है, और पर्याय को द्रव्य पे नहीं झुकाएंगे तो आत्मानुभूति कैसे होगी। जिसके मन में यह बरतती है शल्य, उसको तो सविकल्प स्वसंवेदन भी नहीं हो सकता है। मेरी दुनिया पर्याय मात्र से रहित है। मैं एक ऐसा अपरिणामी ध्रुव निष्क्रिय तत्व हूं जिसमें पर्याय का प्रवेश है ही नहीं। अभी भी पूर्व वक्ता ने कहा था कि नौ तत्व में छुपी हुई जो चेतन ज्योति है, तो वो छुपी हुई चेतन ज्योति को ऊर्ध करना है, और इतना ऊर्ध करना है कि वही सर्वस्व लगे। होता क्या है, पर्याय की पकड़ इस जीव को अनादिकाल से इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि वो पर्याय से रहित वस्तु को वाणी में तो स्वीकार कर लेता है, अभिप्राय में नहीं कर पाता है। देखो, अभी आप लोगों ने यदि हमारे सावधान सोचो के सुने होंगे, तो उसमें एक उदाहरण दिया था हमने आपको 2 दिन पहले, कि सम्यक दृष्टि पति है और शीलवती पत्नी है। तो हाँ, सम्यक दिया था। दृष्टि है, वह यही था कि मैं आपको कुछ ले, जो तेरे सुख दुख के परिस्थितियां बनती हैं, वो तेरे कर्म के उदय के कारण बनती है, मेरे कारण नहीं। लेकिन सती पत्नी यही कहती है कि मेरा सुख दुख का सारा कारण दारोमदार आप ही है।
समझे ना? इसलिए यहाँ पर जो चर्चा है वो चर्चा का मूल बिंदु यह है कि द्रव्य और पर्याय के बीच में एक सीमा रेखा तो आपको खींचना हो। यदि आप उन्हीं प्रदेशों में द्रव्य पर्याय को एक मान के चलते हैं तब आप अभी प्रवचनसार की शैली तक ही खड़े हैं, और प्रवचनसार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। और जब में ज्ञान की प्रधानता होती है तब तक निर्विकल्पता नहीं होती है। ज्ञान में जब श्रद्धा की प्रधानता होती है, और श्रद्धा की प्रधानता भी कैसी, पहले ज्ञान श्रद्धान प्रधान बनेगा, फिर ज्ञान श्रद्धान प्रधान इतना बन जाएगा कि उसे अपनी दुनिया में पर्याय दिखाई नहीं देगी। अब वो ज्ञान माने जैसा अनुभव के काल में उस ज्ञान को मैं मात्र ध्रुव हूं, माने वो शीलवती पत्नी अपने सब सुख दुख का कारण पति को मान रही है, ऐसे ही मैं दृष्टि की पर्याय अपने को मात्र ध्रुव मान रही है, एकमात्र गायक ही मैं हूं। तो उसके स्वर, युगल जी की भाषा में कहें, जिस समय पर्याय के स्वर द्रव्य के स्वरों में मिलके बोलते हैं उसमें उसे निर्विकल्पता होती है। और जब तक पर्याय के स्वर पर्याय के रहेंगे, द्रव्य के नहीं होंगे, तब तक उसके लिए निर्विकल्पता नहीं होगी, सविकल्पता बनी रहेगी। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ पर ज्ञानी धर्मात्मा लालचंद भाई जी कि दूसरी क्लास में आने वाले के लिए, दूसरी क्लास में आने वाले के लिए पहली क्लास पास करना जरूरी है, लेकिन दूसरी क्लास पास होने पर ही पहली क्लास में पास हुआ है, पहली क्लास का इसे ज्ञान है, इस बात की प्रमाणिकता होती है। अब थोड़ी सी चर्चा हम ये लेना चाहते हैं कि यदि हमने जो भी निर्णय किया है, हम अपने अपने गृहवान को जाके अपने हृदय को टटोले, उसमें हमारी दृढ़ता कितनी है। क्या किसी भी दूसरे विद्वान को सुनकर के हम अपने निर्णय को बदल सकते हैं? तो यदि हमारा निर्णय बदल जाता है, थोड़ा ढुलमुल हो जाता है, तो अब हम उस उदाहरण में जो हमने सावधान सोचों में नहीं दिया है, दिमाग में रखा था, आज आपके सामने रखना चाहते हैं कि एक है व्यभिचारी पत्नी, लेकिन उसका पति है सम्यक दृष्टि। तो वो व्यभिचारी पत्नी है, वो उसे सुख अपने पति में दिखता ही नहीं है, उसे हमेशा सुख पर पुरुष में दिखाई देता है। रहेगी अपने पति के साथ, सेवा करेगी, सम्मानेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसे पति में सुख दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही जिन जीवों को अभी मैं परद्रव्य का करता हूं या परद्रव्य मुझे सुख दुख देते हैं, उनकी पर्याय रूपी पत्नी तो व्यभिचारी है। ठीक है, ठीक है। और जिनके पर्याय रूपी पत्नी ने यह निर्णय किया है कि सब सुख दुख का दाता, मोक्ष मार्ग का दाता और मोक्ष का दाता मेरा प्रभु ही है, ध्रुव परमात्मा ही है, तो पर्याय के बोल रहेंगे ध्रुव ही सब कुछ है, और ध्रुव के बोल रहेंगे कि तेरे से मेरे से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम तुम्हारी जानो और मैं मेरी जानू। तो अब वो पर्याय में निर्विकल्पता होती कहां से है? तो साधारण सोचो में हमने किया था, आप थोड़ा सा उस विषय को इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए थोड़ा सा समझ में आ जाए, या जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो उन्हें पढ़ने की जिज्ञासा जगे। सुनना ध्यान से जरा कि जो शीलवान जो सम्यक दृष्टि पति है, उसे तो पत्नी के सुख दुख से कोई लेना ही देना नहीं है। उसे पता है कि इसके घर में के उदय ही से सुख दुख दिलाएंगे, हम नहीं दिला सकते। ठीक है। तो होता है कि त्रिकाली द्रव आत्मा अपनी ही निर्मल मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्यायों का दाता नहीं है, अपने को नहीं मानता है, कर्ता अपने को नहीं मानता है, क्योंकि वह अकारण अकार्यत्व शक्ति का धनी होने से गुरुदेव श्री इस पे आत्मा राग का कारण नहीं है,
और आत्मा राग का कार्य नहीं है। ये हो गई है कि प्रवचन सार की शैली। और समय सार की शैली ये है कि शुद्ध पर्याय का भी कारण आत्मा नहीं है और किसी भी शुद्ध पर्याय का कार्य आत्मा नहीं है। आत्मा कार्य तो है ही नहीं। माने ठीक है। ये भाषा जो आजकल चलती है कि अनुभव के बिना आत्मा को शुद्ध कैसे माने, अर्थात कि अनुभव अर्थात निर्मल पर्याय कारण और आत्मा की शुद्धता कार्य अर्थात त्रिकाल शुद्धता नहीं रही। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक आत्मा शुद्ध सिद्ध नहीं होगा। ऐसे जीव के अभिप्राय में कहीं ना कहीं पर्याय का एकत्व तो बढ़ता ही रहता है। और पर्याय का एकत्व अर्थात पर्याय की दृष्टि, पर्याय की दृष्टि का अर्थ ही होता है उसे पर्याय सर्वस्व लग रही है, द्रव्य सर्वस्व नहीं लग रहा है। इसलिए जिस जीव को दूसरी क्लास पास करने का सर्टिफिकेट मिला है उसी जीव को पहली क्लास के सर्टिफिकेट पे पक्की मोहर छाप लगती है। अब कोई ये कहे कि पर्याय में फिर आनंद आएगा कैसे, तो द्रव्य का लक्ष्य से गुरुदेव कहते लक्ष्य आश्रय सन्मुखता एकत्वता अहम, अब गुरुदेव के शब्द हैं। इससे आनंद आता है। तो कई बार भ्रम ये हो जाता है कि द्रव्य में से पर्याय में आनंद आता है, यह द्रव्य पर्याय का दाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि द्रव्य निष्क्रिय है, कूटस्थ है। जैसे पर द्रव्य विकार नहीं कराते हैं, पुण्य पाप नहीं कराते हैं, दिलाते हैं, सुख दुख नहीं दिलाते हैं, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी स्वद्रव्य नहीं देता है। क्यों नहीं देता है स्वद्रव्य? क्योंकि सुनो ध्यान से कि क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो अकर्ता और निष्क्रिय है। तो आप कहोगे उसे मोक्ष मार्ग मिल कैसे जाता है? क्योंकि जब जब उस पर्याय ने किसी भी परद्रव्य का लक्ष्य किया, यहां तक कि पंच परिवेश्य का भी क्यों नहीं किया हो, पंच परमागम भी क्यों नहीं किया हो, तो वहां उसे सुख और शांति नहीं मिलती है, पूर्णता नहीं दिखती है, अपूर्णता ही मिलती है। और आगे चले, यदि वो पर्याय पे लक्ष्य करता है तो वो विनाशिक है, वो अभी अशुद्ध है। मतलब मोक्ष मार्ग भी मिल गया हो तो एक देश शुद्ध है, पूर्णता तो नहीं है, उसे निर्विकल्पता नहीं हो पाती। लेकिन जब वो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, लक्ष्य अर्थात द्रव्य में अहम करती है, अर्थात मात अपने को द्रव्य रूप ही वेदन करती है, तो द्रव्य तो पूर्ण था, द्रव्य शुद्ध था, द्रव्य एक रूप था, द्रव्य निष्क्रिय था, द्रव्य चमत्कारी था, द्रव्य अनंत वैभव संपन्न था, अनंत गुण का संपन्न एक अभेद और एक एक गुण अनंत अनंत सामर्थ्य को पिए बैठा। गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं कि किसी जीव को केवल ज्ञान हो गया, तीन लोग तीन काल को जानने वाली पर्याय निकली, तो ऐसी पर्याय अनंत काल तक भी निकलती रहे तो अभी उस ज्ञान गुण में उस द्रव्य में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा मैं चमत्कारिक हूं। तो ऐसे पूर्ण निष्क्रिय शुद्ध एक रूप तत्व को जो पर्याय वेदन करती है उसे पूर्णता दिखने से सहज निर्विकल्पता हो जाती है। अभी हमने आज ही सुबह डाला था, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साय। बादशाहों का भी बादशाह है कौन? जिनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लोक के राजा होते हैं वो मुनिराज को नमस्कार करते हैं, इसलिए मुनिराज को महाराजा आ रहे हैं ये कहा जाता है। अपना त्रिकाली ध्रुव महाराजा है, उसके शरण में आने से पर्याय में निर्विकल्पता हो जाती है। उसे कुछ चाहे नहीं रहती, उसे जो कुछ चाहिए था वो अपने अंदर दिख जाता है। सोनगढ़ में नवल भाई जी थे, बहुत समय की पहले पुरानी बात है। वो उनकी क्लास जो चलती थी वो निहाल भाई सोगानी जी की तरफ पे चलती थी। तो उन्होंने एक बार कहा था कि आत्मा वही चाह सकता है जो उसके पास पहले से मौजूद हो, वह चाह ही नहीं सकता है जो उसके पास नहीं हो। अब आप अपने पूरे जीवन के उसको देख लेना, घटना क्रम को, कि हम क्या चाहते हैं। एक बार उन्होंने हमें उदाहरण दिया, सबसे कहा जितने भी श्रोता थे कि सब एक एक ट्रक किराए पे करके ले आना, खाली ट्रक, और तुम जो
चाहोगे वो हम तुम्हें देंगे और अपने ट्रक में भर के ले जाना। तो दूसरे दिन हम लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा ट्रक नहीं लाए हो? हमने साहब ट्रक तो लाए लेकिन आपके मकान के सामने जगह नहीं है इसलिए बाहर खड़ा कर दिया है। बोले अच्छा बोलो क्या चाहिए? हमने कहा साहब पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, मकान चाहिए, पत्नी चाहिए और धन दौलत चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए। अच्छा अच्छा, कल ये क्यों चाहिए? कैसे इससे सुख मिलेगा? कहे बेटा तुम्हें सुख ही चाहिए ना, तो सुख से भरपूर तुम आत्मा है, तो यहाँ आना तो सच्चा सुख मिल जाएगा। फिर तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब का उद्देश्य छड़ालाकार कहते हैं ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो तीन लोग के समझ सुख चाहते हैं, और सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि तू सुख से बना हुआ है। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सुख क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनमें सुख नहीं है, उनमें चाह ही नहीं है, उनमें ज्ञान ही नहीं है। अब गलती हमारी कहाँ होती है, मिस हम कहाँ हो जाते हैं, व्यभिचारी हम कहाँ हो जाते हैं कि वो सुख अपने में होने पर वहां ना स्वीकृत करके, वहां ना देख करके, वहां ना लक्ष्य करके जो सुख से शून्य है। अभी अभी कहा था अरुण जी ने, कैसे पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल जिनमें सुख नहीं है उनमें सुख की कल्पना करके हम स्वयं व्यभिचारी बने फिरते हैं। मिलता कुछ नहीं है, मृग मारीचिका की भांति कुछ नहीं मिलता है समय बर्बाद होने के अलावा। एक बार आगम की हालत को स्वीकार करें कि सुख यहाँ है, हमें कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि हम भरचक है। माने हमारा जो घट है ना भरपूर भरा हुआ है, उसमें किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है। योगल जी एक बात कहते थे, आत्मा इतना पूर्ण परमात्मा है कि सम्य दर्शन की पर्याय ये सिद्ध करती है कि वो पर्याय भी रखने की उसमें जगह खाली नहीं है। इतना भरपूर परमात्मा हमें, तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अपने बारे में निर्णय करिए, अपने बारे में विचार करिए, अपने का घुटन करिए, तो निर्णय करिए। निर्णय करने के बाद में निर्णय में भी अंतिम वाक्य था का लालचंद भाई का कि सामान्य की अधिकता रहना चाहिए। हम देखें कभी आप एकांत में बैठ के घंटे आध घंटे को 15-20 मिनट को चिंतन करते होगे, तो आपके उस 15 मिनट में सामान्य की अधिकता कितनी होती है और विशेष की अधिकता कितनी होती है? आपके ध्यान, मैंने सविकल्प ध्यान के काल में मैं ध्यान करने वाला नहीं हूं, इसकी ऊर्ध्वता कितनी होती है, और मुझे ध्यान करना है और आत्मा का ध्यान करना है, इसकी ऊर्ध्वता कितनी होती है? जो घूटन होता है ना, अभी चर्चा आई थी कि चिंतन और घूटन में क्या अंतर है। तो देखिए, जो चिंतन में हे गे उपादेय पना का निर्णय करके उसमें से उपादेय तत्व को निकाल करके यही मैं हूं, ऐसा जिन्हें निर्णित हो जाता है, ऐसे निर्णय की जिनकी निरंतरता चलती है, उनके जीवन में गहरे संस्कार जाग जाते हैं और उनके संस्कारों में सामान्य की ऊर्ध्वता रहती है। तो क्या है कि घुटन निर्णय से अगला कदम है, और वो है हे गे उपादेय का निर्णय करके उसमें उपादेय भूत तत्व को ऊर्ध्व करना। और यहां पर जो कहते हैं सामान्य को ऊर्ध्व करना, वो एक ही बात है। इसलिए भैया लालचंद भाई ने जो मूल बात अपने को दी है कि पहली क्लास पास होने पर दूसरी क्लास में आता है, लेकिन दूसरी क्लास पास होने पर पहली क्लास पास की ये आरोप आता है। इस बात की बुद्धि को जो समझ जाएगा ना, समझ लीजिए उसके लिए मजा आ जाएगी। मजा आएगी अर्थात मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। आत्मा का अनुभव और मोक्ष मार्ग, और हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे निर्विकल्प अनुभव हो, तो समझ लेना चाहिए वो अभी बहुत दूर है, क्योंकि उसे मोक्ष मार्ग या अतीन्द्रिय आनंद को मिला करके आत्मा पूर्ण दिखती है, लगती है। उसके बिना ही आत्मा पूर्ण है, ये उसे हृदय से स्वीकार नहीं। क्योंकि यदि मैं त्रिकाली हूं
एक रूप हूं कि नहीं हूं? एक रूप हूं तो वर्तमान में हूं कि नहीं हूं? भले ही पर्याय में मिथ्यात्व हो, तो जैसा मैं हूं, यदि मैं अपूर्ण होऊंगा अभी वर्तमान में, तो अपूर्णता की सिद्धा से तो निर्विकल्पता आएगी नहीं। तो मिथ्यात्व के काल में जिसने आत्मा को पूर्ण स्वीकार किया है, सम्यक्त्व के बिना ही आत्मा पूर्ण है, मोक्ष मार्ग के बिना ही आत्मा पूर्ण है, और मोक्ष के बिना ही अर्थात आत्मा मैं पूर्ण हूं, ऐसा जिसकी नाभि से उछाल आता है, ऐसे जीव के लिए आत्मानुभव माने मोक्ष मार्ग और निर्विकल्प अनुभूति और सम्यक दर्शन तो उसकी आरती उतारने के लिए खड़े ही है। हमें पुजारी की पूजा नहीं करनी है, भगवान की पूजा करनी है। ये मोक्ष मार्ग तो सब पुजारी हैं, वो उत्पन्न हो जाए ये लालसा ही नहीं रखनी है। वो माने हमें आत्मा के एक रूप पने का, आत्मा के त्रिकाल शुद्ध पने का निर्णय सम्यक्त के लिए नहीं करना है। मैं हूं ऐसा महान हूं बस। अब इस महानता की निर्विकल्प स्वीकृति का नाम असल में सम्यक दर्शन है। और एक थोड़ा सा निर्णय लें कि सम्यक दर्शन बड़ा लगता है कि आत्मा बड़ा लगता है। यदि सम्यक दर्शन बड़ा लगता है तो आत्मा आपके लिए छोटा हो गया, और सम्यक दर्शन उपाधि हो गया तो आत्मा हे हो गया। आज सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया, आत्मा को हम जैसे हे करें और उससे लाभ भी लेना चाहें, जैसे हम आपको बताएं कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रति क्षण सताता रहे और उसका लाभ भी लेना चाहे तो कैसे संभव होगा? ऐसे ही त्रिकाली द्रव्य को तुम सम्यक तो मोक्ष मार्ग हो, मोक्ष के बिना अधूरा भी मानते रहो, उससे मोक्ष मार्ग का लाभ भी लेना चाहो। और मोक्ष मार्ग मिथ्यात्व के काल में आत्मा को अशुद्ध भी मानते रहो, विकारी भी मानते रहो, संसारी भी मानते रहो, और आत्मा का लाभ भी लेना चाहो मोक्ष मार्ग का। ये दो बातें संभव नहीं हो। पर्याय में कुछ भी बरत रहा हो बरतने दो, मेरे में कुछ भी कमी नहीं है, मेरे में कुछ भी अधूरास नहीं है, मैं वर्तमान में मुक्त हूं। श्रीमद राजचंद्र ने लिखा है ना, सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते था। और एक जीतू भाई मोदी ने एक पुस्तक निकाली थी समझ, उसमें एक कुछ कोटेशन दिए थे। उसका पहला ही बोल था कि जैन शासन केवल समझ का नाम है, समझ के अलावा कुछ नहीं होता है इसमें। विपरीत पर्याय के बारे में, पद के बारे में या द्रव्य के बारे में विपरीत समझ, इसका नाम है संसार। और सच्ची समझ, यथार्थ समझ, सम्यक समझ, इसका नाम है मोक्ष मार्ग, और कुछ नहीं है। और यदि मोक्ष मार्ग की ऊर्ध्वता से आप आत्मा को समझना चाहते हो तो आप आत्मा को नहीं समझ पाओ। आत्मा कैसा है ये आगम से, ज्ञानियों से समझ करके अपनी समझ में बैठा लो कि हम ऐसे निष्क्रिय पूर्ण परमात्मा वर्तमान में, रमेश जी अभी 2-3 मिनट में आप खड़ा वर्तमान में हूं। तो रमेश अब जी भैया एक मिनट, जिसने ये समझ लिया है, जिसकी समझ में ये बैठ चुका है, अब उसके लिए कुछ और समझना बाकी नहीं। फिर तो बाकी जो कुछ होता है वो यही समझ का फल, मुक्त मार्ग, मोक्ष मार्ग, अतीन्द्रिय आनंद और गुण स्थान की बढ़ोतरी और मुनि दीक्षा, इस सहज में आते रहते। बस ये समझ आपकी पक्की होना चाहिए। चलिए हाँ बोलिए रंजन भाई, क्या अच्छा पूछना चाहते नहीं नहीं नहीं, अभी अभी टाइम होना है, अभी जिनवाणी हैं? का हाँ यस, टाइम है तो ठीक है ठीक है, हम बाद में चर्चा बाद में कभी। आपको लेना है जिनवाणी। પ્રશ્ન નથી રજનીભાઈ, એક પ્રશ્ન। हाँ बोलो बोलो। पंडित जी, आपने जो शुरुआत में बात बताई ना, जो पर्याय निरपेक्ष सापेक्ष कुछ भी उससे हाँ आत्मा रहित है, तो वहाँ हाँ, ऐसे तो पर्याय स्वभाव से निरपेक्ष है, फिर भी वहाँ निरपेक्ष पर्याय बोला, वो थोड़ा मुझे समझना था। और दूसरी बात, जब भी हम चार भाव की बात आती है ना, और परम पारिणामिक भाव, तो चार भाव वैसे भी पर्याय है और इसीलिए उससे आत्मा रहित है, मगर वो भी सापेक्ष है, उससे आत्मा रहित है। फिर जब भी हम निरपेक्ष पर्याय बोलते हैं तो वहां क्या समझना,
और जो पारिणामिक शब्द जब भी हम बोलते हैं तो पारिणामिक शब्द से हम निरपेक्ष समझते हैं, मगर ऐसे चार भाव को भी पारिणामिक बोला है क्योंकि वो भी हाँ, पर्याय षटकारक से होती है, इसलिए उसको निरपेक्ष बोला। तो मेरा प्रश्न ये है कि पंचम भाव जो परम पारिणामिक भाव हम बोलते हैं, तो वहां कैसे निरपेक्षता समझना, कौन से परिणाम की हम निरपेक्षता समझते हैं? हाँ, सुनिए, चलिए, बहुत अच्छा है। हम आपके प्रश्न को पहले भाषा सरल करके प्रस्तुत करना चाहते, जिसमें आपका प्रश्न सबको समझ में आ जाए कि एक है पारिणामिक शब्द, एक है परम पारिणामिक शब्द। पारिणामिक की व्याख्या ये आती है जिसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम की अपेक्षा ना हो, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो चारों भाव इस परिभाषा के अनुसार से पारिणामिक हैं, क्योंकि कर्म से नहीं हुए हैं। ये सत्य है कि उनके होने में निमित्त रूप से कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम होता है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ का कर्ता ना होने से कर्म के कारण या कर्म में से उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम रूपी चार भाव हुए हो, ऐसा न होने से चारों भाव पारिणामिक भाव है। एक बात। अब परम पारिणामिक, तो जो अनादि अनंत हो, एक रूप हो और परम पूज्य हो, सर्वोत्कृष्ट हो, उसे परम पारिणामिक भाव कहा है, और चार भावों से रहित हो। तो ऐसा जो तरकारी ध्रुव आत्मा है वो परम पारिणामिक भाव है, और परम पारिणामिक भाव की पूजित परिणति, जिसे कारण शुद्ध पर्याय कहा गया है, उस कारण शुद्ध पर्याय पर जब जीव का लक्ष्य जाता है तो वो पूरे द्रव्य पर लक्ष्य गया, पारिणामिक भाव पर लक्ष्य गया, तो यहाँ पे उपशम भाव हो जाते हैं। अब जो यहाँ पे उपशम भाव हुआ, फिर आगे चल के क्षोभसम भाव हुआ, फिर आगे चल के छायक भाव हुआ, ये सब के होने में परम पारिणामिक भाव का आश्रय ही कारण रहा था। अर्थात जिसने ये समझ लिया था, ये निर्णय कर लिया था कि मैं परम पारिणामिक भाव हूं, उसके पर्याय में सहज उपशम, क्षोभसम, छायक भाव प्रकट होते रहते हैं, लेकिन वो उनका कारण कर्म भी नहीं है और उनका कारण परम पारिणामिक भाव भी नहीं है। परम पारिणामिक भाव का लक्ष्य अवश्य है, लेकिन परम पारिणामिक भाव ने उन चार भावों को उत्पन्न नहीं किया है। वो चार भाव अपनी योग्यता से रहते हैं। वो चार भाव कर्म के कारण नहीं है, इसलिए पारिणामिक भाव है, और द्रव्य के कारण नहीं है, इसलिए पारिणामिक भाव है। लेकिन उन चार भावों की भी अपेक्षा मुझे नहीं है, इसलिए मैं परम पारिणामिक भाव करने की तो अपेक्षा है ही नहीं। मेरा प्रश्न पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम परम पारिणामिक भाव बोलते हैं ना, तो वहां कौन से परिणाम लेना, माने कोई भी निरपेक्ष परिणाम नहीं परिणाम? लेना, नहीं, कोई भी निरपेक्ष परिणाम परिणाम। नहीं लेना, तो फिर कोई भी परिणाम नहीं लेना। नहीं, तो फिर पारिणामिक शब्द क्यों यूज किया? हाँ, सुनिए सुनिए, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि परम पारिणामिक भाव को पारिणामिक ही क्यों कहा है, क्योंकि पारिणामिक शब्द में परमन की सापेक्षता छुपी हुई दिखाई देती है। आया ना समझ बराबर। में? अब आपके आप पकड़ोगे सही ढंग से। तो गुरुदेव कहते हैं, देखना जरा, आप अपन गुरुदेव की भाषा को देखें कि ध्रुव 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 ऐसा बहता हुआ, माने निष्क्रिय रूप से बहना उसका है, निष्क्रिय रूप से परमन है। जब उत्पाद में कैसा भी चल रहा हो तो उस समय प्रवचन सार की शैली में देखें कि तत्काले तन्मयम, कि जैसा परमन है उस काल में द्रव्य को तन्मय कहा जाता है, लेकिन वो सर्वथा किसी भी पर्याय रूप नहीं होता है। पर्याय के परमन के काल में उसका जो ध्रुव प्रवाह है वो एक रूप बना रहता है, उसका जो ध्रुव प्रवाह है उसका नाम है परमन, वो उत्पाद वैसे रहत वाला। तो उस प्रणमन के कारण से, एक रूप सादृश प्रणमन के कारण से उसका नाम परम पारिणामिक भाव है। परम का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, और एक रूप प्रणमन उत्पाद वय बिना का, इसका नाम है पारिणामिक, हाँ, तो इसलिए वो मैंने परम ऐसे, पारिणामिक। हाँ, तो पंडित जी, मैंने वहां ऐसे समझा कि वो शुद्ध ज्ञान चेतना के जो परिणाम है ना, जो कारण शुद्ध पर्याय की बात है ना, जो त्रिकाल हाँ, ध्रुव रूप प्रवाह जो हो ना, उसको हम शुद्ध चेतना के परिणाम शब्द बोलते हैं, मगर वास्तव में तो वो निष्क्रिय वस्तु है, निष्क्रिय। हाँ, तो वो वाली मैंने वो बात है ना। परिणाम नहीं है। सुनो हाँ, सुनो,
जैसे उत्पाद में वाले परिणाम को परिणाम संज्ञा है, ऐसी त्रिकाली को परिणाम संज्ञा नहीं है। वो तो ध्रुव प्रभाव लेना बस। आप गुरुदेव की शैली में अपन देखो जरा, एक और हाँ ठीक है, उदाहरण बराबर है। एक और समझो, छोटा सा उदाहरण। बहन, आपका नाम क्या है? उषा बेन। उषा बेन। उषा बेन, सुनना ध्यान से कि जन्म से लेके जब से आपने होश संभाला है आज तक आप उषा बेन रही, लेकिन इसके बाद में भी आपका शरीर, आपका ज्ञान, आपका श्रद्धान बहुत कुछ बदला है, लेकिन वो बदलने के बाद में भी उषा बेन बदली क्या? नहीं। बदली ना। बस ये उदाहरण है कि पर्याय में उपसम उपसम छाय भाव बहुत बदले, लेकिन मैं नहीं बदला हूं। जो नहीं बदलने वाला है वो परम पारणामिक भाव है, जो बदलने वाला है वो चार भाव है। तो आपने भी मैंने कोई भी परिणाम चलते हो, मान के चलो कि आप स्थानकवासी जैन थे, उस समय गृह मिथ्या दृष्टि थी, उस समय भी उषा बेन तो थे ना। अब गुरुदेव के प्रताप से आप इस मार्ग पे आ गए हो तो भी उषा बेन हो। इसलिए उषा बेन पना परम पारणामिक भाव पना है, और जो कुछ चेंजिंग है वो चार भाव पना है। तो इतना समझना है। चलिए, समय हो गया है। हाँ पंडित जी, नेक्स्ट हाँ। टाइम वो प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी का आप थोड़ा समझाना। हाँ, अभी भी रजनी भाई ने कहा था, लेकिन हमारा जो आज मैंने टारगेट था, हमने जो पीडीएफ पढ़ी थी कि पहली क्लास और दूसरी क्लास की, उसमें नहीं, हमारा वो दिमाग बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझाया और वो बात भी बहुत महत्व की थी। पंडित साहब, मेरे को थोड़ा सा एक और ये समझना है कि बोलिए। आपने जो ये कहा है, बताया है कि पहली क्लास का पास होना आनंददायी होगा जब दूसरी क्लास पास कर लोगे। तो दूसरी क्लास पास कर लेंगे तो पहली क्लास का आनंद आएगा। तो ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। सुनो सुनो, ये ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा है। ये कहा है कि पहली क्लास अर्थात दो द्रव्य की भिन्नता जिसको नहीं बैठी है, उसके लिए पर्याय से भिन्नता बैठने वाली नहीं है। अब किसी ने दो द्रव्य की भिन्नता तो स्वीकार कर ली, तो कहाँ आ गया वो? अब दूसरी क्लास में आया है, अभी पास नहीं की है। अब दूसरी क्लास में अब वो परीक्षा दे रहा है किसकी? कि पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूं। इस परीक्षा में पास किया तो वास्तव में तो अनुभव तो दूसरी क्लास में हुआ। तो जो दूसरी क्लास में अनुभव आया है, अतीन्द्रिय आनंद आया है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, तब उसके लिए कहेंगे इसने पहली क्लास अब पास की है। अब पास की अर्थात पहले जो विकल्प में दो द्रव्य की भिन्नता बसाई थी, वो निर्विकल्पता में दो द्रव्य की भिन्नता आ गई उसके लिए। इसलिए पहली क्लास का पक्का सर्टिफिकेट दूसरी क्लास के पास होने के बाद ही मिलता है। पहली क्लास में पास में जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो कच्चा था। ये रमेश भाई, रमेश भाई, रसिक भाई बोल रहा हूँ। ये पहली क्लास में तो एटिकेट ही मिली थी, अलाउड टू कीप टर्म। दूसरे क्लास में चढ़ा दिया, लेकिन वो पहली क्लास पास कब करेगा? जब दूसरी क्लास पास करेगा तब उसके पहली क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा। तुमने बराबर पहली क्लास पास तो ट्रायल पास भी हो गया था। वो तो एटिकेट ही थी। हाँ, सही है। ये लाचन मैंने उदाहरण दिया है। हाँ, लाचन भाई यही कहा। हाँ, यही कहा, बराबर है, सही है, बहुत बढ़िया। तो रसिकભાઈ તમે લઈ લો જીનવાણી રસિકભાઈ જીનવાણી। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देता हूँ दो। बोलो बोलो परम वितरागी देव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। जय हो। वितरागी देव शास्त्र गुरु भगवान ની ઓળખાણ કરાવી, તેના મંગલ ભેટા કરાવનાર અધ્યાત્મ યુગ પ્રવર્તક, जिनेन्द्र मार्ग प्रभावक, जिनवाणीना रहस्य उद्घाटक, परम तारणहार अनंत 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 उपकारी कान गुरुदेव नो जय हो। जय हो।
ધન્ય અવતાર પ્રથમ મૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જય હો જય હો. મંગલ મૂર્તિ એકાવતારી પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવનો જય હો. જય હો પરમ વિતરાગ પરમ પવિત્ર સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ નો જય હો. જય જયકાર હો. જય હો જય હો. જયકાર. જય જયકાર હો. બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ બધાને રમેશભાઈ. સાદર Thank you. જય જિનેન્દ્ર. રમેશભાઈ જય સાદર જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. તમે